1 year Bible reading plan, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 26 चैप्टर 1 वर्स से 30 वर्स, एक्सोडस 32 चैप्टर 33 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 1 वचन से 30 वचन। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय 33 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से, गुजराती में BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, आपका वचन हमारा मार्गदर्शन है। जिस वचन को पिता परमेश्वर आपके आत्मा ने हम में प्रकट किया है, उसे कोई भी अपने मांस और लहू की ताकत से नहीं प्राप्त कर सकता है। ये वचन हमारा जीवन है, मार्ग है, सत्य है। इसके अंदर हमारा भविष्य है। हम उस रास्ते से निकल पड़ते हैं जिसमें से तू हमको लेकर जाना चाहता है। हम शत्रु के हाथ नहीं लगते हैं। हम परमेश्वर तेरे ऊंचे स्थान में, जो हाईवेज कहा गया है तेरे वचन में, उस रास्ते से हम चलते हैं जो उकाब ऊंची उड़ान लेता है। और पिता परमेश्वर, जो लोग जो दौड़ते तो है लेकिन थकते नहीं है, मेरे परमेश्वर तेरा सबसे अच्छा जो परमेश्वर भाग है वो धर्मियों के लिए रखा हुआ इसी वचन के अंदर से तूने हमको दे दिया है। इस वचन की जानकारी में हम अपने आप को तृप्त और परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान, जीवित बलिदान हम समर्पित होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। पवित्र जातियों में हमारी गिनती होती है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तेरा वचन हमें ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है। तेरे वचन के आधार से हम फैसले करते हैं। तेरा वचन हमको सही और गलत का न्याय करना सिखाता है। तेरा वचन हर एक तरफ से दो धारी तलवार है जो हमारे सारे भेद रहस्य को खोल देता है और परमेश्वर के लिए हमें शुद्ध और पवित्र रखता है। यही वचन खुदा परमेश्वर हमारा दोस्त है, हमारा परम मित्र है, जो हमसे कभी डिपार्ट नहीं होगा, कभी हमारे जीवन को वो धोखा नहीं देगा। ये वचन वो सच्चाई है खुदा परमेश्वर, जो सदा काल के लिए हमारे साथ ठहरी रहेगी। थैंक यू फादर गॉड, इस वचन के लिए हमारे अंदर प्रेम जगा और इसके साथ बने रहने के लिए हमारे अंदर विश्वास योग्यता दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। मैथ्यू 26 चैप्टर 1 वर्स से 30 वर्स तक किंग्स जेम्स वर्जन में से हम पढ़ेंगे। The rulers conspire against Christ. Judas selleth him. Christ eateth the Passover. And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples, Ye know that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. Then assembled together the chief priests and the scribes and the elders of the people unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas, and consulted that they might take Jesus by subtlety and kill him. But they said not on the feast day, lest there be an uproar among the people. Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste? For this ointment might have been sold for much and given to the poor. When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. For ye have the poor always with you, but me ye have not always. For in that she hath poured this ointment on my body, she did
it for my burial. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this that this woman hath done be told for a memorial of her. Then one of the 12, called Judas Iscariot, went unto the chief priests and said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for 30 pieces of silver, and from that time he sought opportunity to betray him. Now, the first day of the feast of unleavened bread, the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the Passover? And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand. I will keep the Passover at thy house with my disciples. And the disciples did as Jesus had appointed them. And they made ready the Passover. Now when the even was come, he sat down with the 12, and as they did eat, he said, Verily I say unto you that one of you shall betray me. And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. The Son of Man goeth as it is written of him. But woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born. Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and brake it and gave it to the disciples and said, Take, eat, this is my body. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, Drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 1 वचन से 30 वचन तक पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये कायफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। बैतनिया में यीशु का अभ्यंजन 6 वचन से आगे। जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात।
14 से आगे। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने के अवसर ढूंढने लगा। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज। 17 से आगे। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने को तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। प्रभु भोज। 26 से आगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों को क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 26 1 से लेकर 30 कलम तक हम पढ़ेंगे। बेशय बाइबल में से हम पढ़ेंगे। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुण्य काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। जब यीशु ने बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूँगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूँ तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे
30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई, वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। એક વર્ષની બાઇબલ વાંચન યોજના. માથેની લખેલી સુવાર્તા 26મો અધ્યાય 1થી લઈને 30 કલમ. નિર્ગમન 32મો અધ્યાય અને 33મો અધ્યાય. આપણે ગુજરાતી બાઇબલ 2 વિષયમાંથી વાંચીશું. માથેની લખેલી સુવાર્તા 26મો અધ્યાય 1થી લઈને 30 કલમ. અને ઈસુએ એ સર્વ વાતો પૂરી કરી ત્યારે એમ થયું કે તેણે પોતાના શિષ્યોને કહ્યું, તમે જાણો છો કે 2 દહાડા પછી પાસ્કા પર્વ છે અને માણસનો દીકરો વધસ્તંભે ચડાવવા સારું પરસ્વાધીન કરાય છે. ત્યારે મુખ્ય યાજકો તથા લોકોના વડીલો કાયાફા નામે પ્રમુખ યાજકની કચેરીમાં એકઠા થયા અને ઈસુને કપટથી પકડીને મારી નાખવા માટે તેઓએ મનસૂબો કર્યો. પણ તેઓએ કહ્યું કે પર્વમાં નહીં રખેને લોકોમાં ગડબડ થાય. અને ઈસુ બેથનિયામાં સિમોન કોઢિયાના ઘરમાં હતો. ત્યારે અતિ મૂલ્યવાન અત્તરની સંગેમરમરની ડબ્બી લઈને એક સ્ત્રી તેની પાસે આવી ને તે જમવા બેઠો હતો ત્યારે તેના માથા પર તેણે તે રેડ્યું. પણ તેના શિષ્યોએ તે દીઠું ત્યારે તેઓએ ગુસ્સે થઈને કહ્યું કે એ નુકસાન શા માટે? કેમ કે એ અત્તર ઘણે મૂલ્યે વેચાત ને દરિદ્રીઓને અપાત. ત્યારે ઈસુએ એ જાણીને તેઓને કહ્યું કે એ સ્ત્રીને તમે કેમ સતાવો છો? કેમ કે એણે તો મારા પ્રત્યે ઉત્તમ કાર્ય કર્યું છે. કેમ કે દરિદ્રીઓ સદા તમારી સાથે છે, પણ હું સદા તમારી સાથે નથી. તેણે એ અત્તર મારા શરીર પર રેડ્યું, એ તો મારા દટાવાની તૈયારીને સારું તેણે કર્યું. હું તમને ખચિત કહું છું કે આખા જગતમાં જ્યાં કંઈ આ સુવાર્તા પ્રસિદ્ધ કરાશે, ત્યાં એણે જે કર્યું છે તે પણ એની યાદગીરીને અર્થે કહેવામાં આવશે. ત્યારે યહૂદા ઇસ્કરિયોત નામે તે 12માના એકે મુખ્ય યાજકોની પાસે જઈને કહ્યું કે હું તેને તમારે સ્વાધીન કરું તો તમે મને શું આપવા રાજી છો? અને તેઓએ તેને 30 રૂપિયા તોડી આપ્યા. અને ત્યારથી તેણે તેને પરસ્વાધીન કરવાનો લાગ શોધ્યા કર્યો. અને 2 ખમીર રોટલીના પર્વને પહેલે દહાડે શિષ્યોએ ઈસુની પાસે આવીને કહ્યું કે તારે વાસ્તે પાસ્કા ખાવાની અમે ક્યાં તૈયારી કરીએ? તારી શી ઈચ્છા છે?
ત્યારે તેણે કહ્યું કે નગરમાં ફલાણાની પાસે જઈને તેને કહો, ઉપદેશક કહે છે કે મારો સમય પાસે આવ્યો છે, હું મારા શિષ્યો સુદ્ધા તારે ઘેર પાસ્કા પાડવાનો છું. અને ઈસુએ જેમ શિષ્યોને આજ્ઞા આપી હતી તેમ તેઓએ કર્યું ને પાસ્કા તૈયાર કર્યું. અને સાંજ પડી ત્યારે 12 શિષ્યોની સાથે તે જમવા બેઠો. અને તેઓ જમતા હતા ત્યારે તેણે તેઓને કહ્યું, હું તમને ખચિત કહું છું કે તમારામાંનો એક મને પરસવાદીન કરશે. ત્યારે તેઓ ઘણા શોકાતુર થયા ને તેઓમાંનો હરેક તેને પૂછવા લાગ્યો કે, પ્રભુ, શું તે હું છું? અને તેણે ઉત્તર દીધો કે જેણે મારી સાથે થાળીમાં હાથ ઘાલ્યો છે તે જ મને પરસવાદીન કરશે. માણસના દીકરા સંબંધી જેમ લખેલું છે તેમ તે જાય છે ખરો, પણ જે માણસથી માણસનો દીકરો પરસવાદીન કરાય છે તેને અફસોસ છે. જો તે માણસ જન્મ્યો ન હોત તો તે તેને માટે સારું હોત. ત્યારે તેને પરસવાદીન કરનાર યહૂદાએ પૂછ્યું કે, રાબ્બી, શું તે હું છું? તે તેને કહે છે કે તે પોતે જ કહ્યું. અને તેઓ ભોજન કરતા હતા ત્યારે ઈસુએ રોટલી લઈને તથા આશીર્વાદ માંગીને ભાંગી અને શિષ્યોને તે આપીને કહ્યું કે લો, ખાવો, એ મારું શરીર છે. અને તેણે પ્યાલો લઈને તથા સ્તુતિ કરીને તેઓને આપીને કહ્યું કે તમે સહુ એમાંનું પીવો, કેમ કે નવા કરારનું એ મારું લોહી છે, જે પાપોની માફીને અર્થે ઘણાઓને સારું વહેવડાવવામાં આવે છે. અને હું તમને કહું છું કે હું મારા બાપના રાજ્યમાં તમારી સાથે નવો દ્રાક્ષારસ નહીં પીઉં તે દહાડા સુધી હું હવેથી તે પીનાર જ નથી. અને ગીત ગાયા પછી તેઓ જૈતુનના પહાડ ઉપર ગયા.